کئی سال پہلے کا ذکر ہے کہ کسی ملک کے ایک شہر میں جس کا نام و نشان بھی زمانے کے سینے سے مٹ گیا ہے، ایک معمولی سا دکاندار محنت مزدوری سے اپنی روزی کماتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ بچوں کے لیے حلال کا لقمہ حاصل کرے۔ اس نے کئی سال نہایت جانفشانی سے محنت کی اور ماتھے کا پسینہ بہایا، لیکن سوائے ایک چھوٹی سی دکان کے اس کے پاس کوئی جمع پونجی نہ تھی، بلکہ بڑی مشکل سے اپنے اہل و عیال کی روزی کماتا تھا۔ اگرچہ اس کے پاس کوئی جمع پونجی نہ تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا تھا کہ اس نے اس دنیا فانی میں 2 روزہ زندگی بسر کر لی اور اچھا برا وقت گزار لیا اور کسی کا محتاج نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ایسے لوگوں سے بہتر ہوں جو ہوا کے جھونکے کی طرح حرام کی کمائی سے مال و اسباب کے مالک بن جاتے ہیں۔ ایک دن اس بندہ خدا نے بسم اللہ کہہ کر اپنی دکان کا دروازہ کھولا تو اسے اپنا پرانا دوست دکھائی دیا جو اس کی دکان کی طرف چلا رہا تھا۔ دوست نے اس کی مزاج پرسی کی اور اس کے کاروبار کا پوچھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ حلال کا لقمہ مل رہا ہے اور رکی سکی پر بسر ہو رہی ہے۔ دکاندار کے دوست نے بھی اپنا ماجرا بیان کیا اور اپنی چادر میں چھپائی ہوئی تھیلی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا، میرے دوست، میرا ارادہ سفر پر جانے کا ہے۔ اس تھیلی میں 1000 دینار ہیں۔ میری واپسی تک یہ تھیلی امانت رکھ لیں۔ مجھے امید ہے آپ اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اگر آپ تکلیف محسوس کریں تو میں کسی دوسرے دوست کے پاس رکھ دوں گا، لیکن اس شہر میں تمہارے جیسے ایماندار اور دیانتدار شخص کا ملنا مشکل ہے۔ دکاندار نے کہا، میرے دوست، ایسی کوئی بات نہیں، اپنی تھیلی میرے حوالے کر دو اور نہایت راحت اور اطمینان سے سفر پر چلے جاؤ۔ میں تمہاری واپسی تک اپنی جان کی طرح اس کی حفاظت کروں گا۔ دوست نے تھیلی دکاندار کے حوالے کر دی اور اسے خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ دکاندار بھی اسے اللہ کی امان کہنے لگا اور اس کے جانے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور کپڑے کے تھان کرینے سے سجانے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ 2-3 نوجوان اس کی دکان کے سامنے آ نکلے، جنہوں نے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس پہن رکھے تھے اور ان کے چہرے سے تکبر اور غرور کے آثار نمایاں تھے۔ پھر وہ دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور گھوڑوں سے اتر آئے اور اسی دکاندار سے باتیں کرتے ہوئے ہنسنے لگے اور فرمائش کی کہ کوئی عمدہ قیمتی کپڑا دکھاؤ۔ اچانک انہیں دکان کے کونے میں ریشمی کپڑا دکھائی دیا اور دکاندار سے فرمائش کی کہ اسے اٹھا لاؤ۔ دکاندار نے کپڑا اٹھایا اور ان کے سامنے پھیلا دیا تو انہوں نے اسے ایسا پسند کیا کہ اپنی خوشی کو بھی چھپا نہ سکے۔ پھر ایک جوان کہنے لگا، اے مرد، شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ یہ کپڑا بہت قیمتی ہے، اس لیے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو۔ ہم صبح سے اس شہر اور بازار میں پھر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کپڑا کہیں نظر نہیں آیا اور اس کی تلاش میں تمہاری دکان پر پہنچے ہیں۔ دکاندار نے کہا کہ یہ کپڑا پرانے ذخیرہ سے بچا ہوا ہے، میرے گاہک اس کی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے یہ کپڑا بچ گیا اور کسی نے نہیں خریدا۔ خلاصہ یہ کہ نوجوانوں نے کپڑا اٹھایا اور بغیر کچھ کہے سنے چل پڑے۔ دکاندار ان کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا، ارے بھائی، اس کپڑے کی قیمت تو دیتے جاؤ۔ ایک جوان جو اپنے ساتھیوں سے ذرا قد میں بڑا تھا کہنے لگا، کل شاہی محل میں آ جانا، ہم بادشاہ کے مصاحب ہیں، وہاں آ کر ہمارا پتہ معلوم کر لینا اور کپڑے کی قیمت لے جانا۔ دکاندار یہ باتیں سن کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں سے کپڑے کی قیمت وصول کرنا ممکن نہیں۔ خدا خدا کر کے وہ دن گزر گیا اور دکاندار اپنے دوست کی تھیلی گھر لے گیا اور اسے ایک کونے میں چھپا دیا اور اگلے دن گدھے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا تاکہ اپنے بیچے ہوئے کپڑے کی قیمت وصول کرے۔ لیکن یہ سادہ لوہ دکاندار اصل معاملہ سے بے خبر تھا اور خوش تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کپڑے کی قیمت وصول کر لے گا۔ اس لیے کچھ دیر کے بعد جب محل کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف سپاہی چوبدار کھڑے ہیں، جنہیں ان جوانوں کی نشانی بتائی جو کپڑا خرید کر لائے تھے۔ چوبداروں نے جب دکاندار کی باتیں سنی تو کہنے لگے کہ وہ کل آ کر واپسی جواب لے جائے۔ دکاندار تو سوچ رہا تھا کہ وہ بہت جلد اچھی خاصی رقم کا مالک بن جائے گا، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکایا اور واپس چل پڑا۔ اور پھر دوسرے دن رقم کے لیے آیا تو اسے کہا گیا کہ 1 ہفتہ کے بعد آئے، اور ہفتہ کے بعد بھی یہی ہوتا رہا۔ مختصر یہ کہ ایک دن دکاندار نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا کہ میں چند ہفتوں سے اپنی رقم کے لیے چکر لگا رہا ہوں، لیکن مجھے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ آخرکار وہ ایک دن پھر نہایت نا امیدی سے اپنی رقم کے لیے گیا تو اسے ایک نیک چوبدار ایک کونے میں لے گیا اور کہنے لگا، اے آدمی، تم کیسے سادہ اور بے وقوف ہو۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے ہمیں کہا ہے
कि अगर इस शक्लो सूरत का कोई शख्स रकम के लिए आए तो उसे आज और कल का वादा करें और टाल दें, यहां तक कि वो आने जाने में थक जाए। इसलिए तुम खुद सोचो कि कब से तुम चक्कर लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर रकम की कोई निशानी या सूरत नजर नहीं आती। इसलिए अगर तुम पसंद करते हो तो ज्यादा दर्द सरी ना लो और कपड़े की कीमत को भूल जाओ। दुकानदार ने चौबदार से कहा, मैंने ना वो कपड़ा चुराया था और ना ही हराम की कमाई से खरीदा था कि उसकी कीमत को भुला दूं, और ना ही सदका और खैरात मांगने और ना ही अपना काम छोड़कर रोज रोज आ सकता हूं। मैं अपना हक लेना चाहता हूं। अब ये मसाहब जैसे भी हैं, मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं। अगर उन्होंने मेरी रकम ना दी तो सीधा बादशाह के पास जाऊंगा और रकम वसूल करूंगा। चौबदार ने कहा, मैंने तुम्हें हकीकत बता दी, अब तुम्हारा दिल जैसे भी चाहे उस पर अमल करो। इसलिए दोबारा कहूंगा कि अपनी खुशी और सलामती चाहते हो तो कपड़े की रकम को भूल जाओ। अगर मेरा मशवरा तुम नहीं मानते तो वहां तक जा पहुंचो जिस जगह अरब भी अपनी बांसुरी भूल जाते हैं। दुकानदार की समझ में नहीं आ रहा था कि ये बातें और वाकयात ख्वाब में देख रहा हूं या जाग रहा हूं। इसलिए वो चंद मर्तबा फिर महल की तरफ गया और उन जवानों का पता मालूम करता रहा जो उसकी दुकान से कपड़ा ले आए थे, लेकिन उस बेचारे के कुछ हाथ ना आया। ताहम वो फिर भी नाउमीद न हुआ। उसे उम्मीद थी कि किसी दिन उन्हें गली कूचों में तलाश कर लेगा और अपनी रकम उनसे मांगेगा। दुकानदार का अंदाजा गलत भी न था। इत्तफाक से एक दिन उसने अपनी दुकान छुट्टी की हुई थी कि उसने देखा कि वही जवान घोड़ों पर सवार हैं और निहायत तेजी से गली से गुजर रहे हैं। दुकानदार आगे बढ़ा और मुस्कुराते उन्हें सलाम किया और मिजाज पुरसी के बाद अपने कपड़े की रकम मांगी। उन नौजवानों ने जब दुकानदार की बातें सुनी तो कहकहे लगाने लगे और एक जवान आगे बढ़कर कहने लगा, क्या पागल हो गए हो? कौन सी रकम और कैसी रकम और कैसा कपड़ा? दुकानदार ने अपनी सादगी से पूरा वाकया सुनाया और अपनी दुकानदार की निशानी बताई तो एक जवान कहने लगा, क्या हम तुम्हारे मामूली कपड़े के मोहताज हैं? अगर हमें ऐसी चीज की जरूरत हो तो हम हुक्म देते हैं कि हमारे लिए हिंदुस्तान, चीन और जापान से मंगवाई जाए। हमें इतनी फुर्सत नहीं कि बाजार जाएं और तुम्हारे जैसे मामूली दुकानदार से कपड़ा खरीदें। उन्होंने इतना ही कहा और घोड़ों की बागें खींचकर चल पड़े। उस आदमी ने जब देखा कि उसकी रकम डूब रही है और उस पर खयानत का इल्जाम लगाया जा रहा है तो आगे बढ़ा और एक जवान के घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसे जमीन पर खींच लिया। और ज्यादा देर ना गुजरी थी कि दोनों आपस में दस्तों गिरेबां हो गए। दूसरे दोनों जवान कुछ दूर निकल गए, लेकिन जब उन्होंने शोरोगुल सुना तो घोड़ों से नीचे उतरे और तीनों ने मिलकर दुकानदार को बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। लेकिन दुकानदार भी तो जला भुना हुआ बैठा था। उसने भी दो नौजवानों के कपड़े तार तार कर दिए, बल्कि पहले जवान के सर और चेहरे को लहूलुहान कर दिया और जमीन पर गिराकर खूब पिटाई की। इस झगड़े के बाद तीनों जवान घोड़े पर सवार हुए जल्दी से भाग गए, लेकिन दुकानदार को जख्मी हालत में छोड़ गए। दुकानदार का मुंह, सर और बदन खून आलूद था। ऐसी हालत में ही घर पहुंचा। जब उसे बच्चों और बीवी ने देखा तो परेशान हो गए और सारा माजरा पूछने लगे कि तुम्हारे साथ क्या हादसा पेश आया। दुकानदार ने पूरा वाकया बयान किया और कहा, अगरचे मैं जख्मी हूं, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने बादशाह के मुसाहिबों का मुकाबला किया। अगर ऐसा ना करता तो दिल में कुड़ता रहता। दुकानदार का बदन जख्मों से चूर था, इसलिए चंद दिन अपने घर पर रहा और जख्मों की मरहम पट्टी करवाता रहा। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत से काम लिया और दुकान पर चला गया। जब उसने दरवाजे के तख्ते अलग किए और अपने काम में लग गया तो अचानक उसने देखा कि दरोगा शहर के दो सिपाही उसके सामने खड़े हैं। दुकानदार ने पूछा, किस लिए आए हो सिपाहियों? सिपाहियों ने कहा, हमारे साथ आओ, फिर सब मालूम हो जाएगा। अभी तक दुकानदार के जख्म मुंदमिल न हुए थे कि वो दरोगा खाना यानी कोतवाली पहुंच गया। उसने देखा कि दरोगा और सिपाही उसे घूर रहे हैं। दुकानदार ने पूछा, जनाब दरोगा साहब, मुझे किस लिए बुलाया है? दरोगा ऐसे सवाल का मुंतजिर ना था, इसलिए फड़क कर कहने लगा, ये कैसी बातें हैं? चंद दिन हुए हैं तुमने बादशाह के मुसाहिबों से उलझे हो और उन्हें कत्ल का इरादा किया। तुमने ऐसे बाइज्जत लोगों से दस्त अंदाजी की जुर्रत कैसे की? दुकानदार कहने लगा, मैंने अपने कपड़े की रकम मांगी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो तीन थे और मैं अकेला था। उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। दरोगा ने कहा, तूने गलती की है। क्या तुम एक मामूली सा कपड़ा उन्हें हदिया के तौर पर नहीं दे सकते थे? क्या बादशाह सलामत तुम्हारी हिफाजत की खातिर इतना भी हक नहीं रखते कि उसके मसाहब तुमसे एक मामूली सा कपड़ा ले सकें? दुकानदार ने जब देखा कि अब मुझे ही मुल्जिम ठहराया जा रहा है तो कहने लगा, जनाब दरोगा साहब, वो लोग कपड़ा खरीदने के इरादे से मेरी दुकान पर आए थे
ना कि बादशाह या अपने लिए तोहफा लेने के। मैं कई दिन महल का चक्कर लगाता रहा लेकिन मुझे कोई जवाब ना मिला, और जब कई दिनों के बाद उन्हें देखा तो वो कहने लगे, क्या पागल हो गए हो? हमने तुमसे कोई कपड़ा नहीं खरीदा है। जनाब दरोगा जी, क्या हदिया देना और हदिया लेना ऐसे होता है? दरोगा ने कहा, बहरहाल मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है वो ये है कि बादशाह ने मुझे हुक्म दिया कि चूंकि तुम उसके मुसाहबों से उलझे हो, लड़ाई की, उनकी बेइज्जती की और उनकी कदर नाशनासी का इर्तिकाब किया, इसलिए तुम्हें कैद खाने में भेजा जाता है और तुम्हारे मालो असबाब भी मुल्क के खजाना में जमा कराने का हुक्म दिया जा रहा है, ताकि किसी दूसरे शख्स को ऐसी जुर्रत ना हो कि बादशाह और उसके मसाहिबों की बेहतरामी ना करे। दुकानदार ने जब सुना तो उसके सामने तो दुनिया ही तारीक हो गई और करीब था कि उसके बदन से रूह परवाज कर जाए कि इतने में दरोगा कहने लगा, चूंकि तुम मस्कीन हो और सादा लो हो, इसलिए तुम्हें कैद खाने में नहीं भेजता और बादशाह से इसकी जवाबदेही मैं खुद कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा मालो सबाब हर हालत में सरकार की कब्जे में चला जाएगा। तुम्हारी दुकान में जितना माल है अब उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, इसलिए अब जाओ और अपने बाल बच्चों की फिक्र करो। दुकानदार बेचारा दिल शिकस्ता और गमगीन हो गया। उसकी हालत उस शख्स की तरह थी जो जमीन पर बैठे होते हैं। वो ऐसी हालत में घर लौटा कि इंसाफ से नाउम्मीद था। दूसरे दिन सुबह बादशाह के कारिंदे आए और दुकानदार की नजरों के सामने दुकान में जितना भी मालो असबाब था उठाकर ले गए और उसे तन्हा छोड़ गए। दुकानदार खाली हाथ रह गया। कुछ देर तक अपनी दुकान के सामने बैठा रहा और सोचता रहा कि जिस तरह भी होगा उसे कोई काम तो करना ही है ताकि उसके बीवी बच्चे भूखे न रहें। वो यही सोच रहा था कि कहाँ जाए और क्या करे कि इतने में उसे अपने दोस्त की वो अमानत के तौर पर रखी हुई थैली याद आई जो सफर पर गया था, और 1000 थैली में भरे हुए दिनार उसके पास अमानत रख गया था। फिर अपने आप से कहने लगा कि मेरे दोस्त को मुझ पर एतमाद है कि मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं करूंगा, इसलिए मैं उस थैली से कुछ रकम कर्ज के तौर पर ले लेता हूँ और उसे अपनी तिजारत में लगाए देता हूँ, और जब मेरी हालत सुधर जाएगी तो अपने दोस्त की रकम उसी थैली में वापस रख दूंगा। ये सोचते हुए घर पहुंचा और कोठली का दरवाजा खोला जिसमें थैली रखी हुई थी, लेकिन जब थैली को खोलना चाहा तो अचानक उस पर कपकपी तारी हो गई और दिल में कहने लगा कि मुझे कैसे मालूम है कि मेरी तिजारत फले फूलेगी और मैं जल्द कर्ज अदा करते हुए रकम वापस थैली में रख दूंगा। शायद ये रकम मेरे दोस्त की अपनी मलकियत ना हो और उसके पास भी किसी और की अमानत रखी हो। अगर मेरी तिजारत को 4 चांद भी लग गए और वो रकम जो थैली से लूंगा अपनी जगह पर रख भी दी तो क्या ऐसा करना ठीक होगा? क्या ऐसा फेल अमानत में खयानत के जुमरे में नहीं आता? नहीं नहीं, मुनासिब है कि अपनी मुश्किल के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करूं। अमानत में खयानत करना मेरी मुश्किल का हल नहीं हो सकती। दुकानदार ने थैली उसी तरह अपनी जगह पर रख दी और कोई दूसरा तरीका सोचने लगा। फिर वो चंद दोस्तों के पास गया और उनसे कुछ रकम कर्ज लेकर आजकल के दुकानदारों के कौल के मुताबिक कई किस्म का कपड़ा खरीदा और कई दिनों से बंद दुकान में दोबारा रौनक आ गई। दुकानदार पर उम्मीद था कि बहुत जल्द उसकी हालत सुधर जाएगी और अपने दोस्तों का कर्ज जल्द अदा कर देगा, लेकिन शोमई किस्मत कि उसकी किस्मत न चमकी और जिस तरह उसे खदशा था दोस्तों का कर्ज अदा न कर सका। एक छोटी सी दुकान में इतना कपड़ा फरोख्त ना होता और घर का खर्च भी उस दुकान से चलाना था। अलबत्ता उसके बाज दोस्त साबिर और बाहौसला थे, इसलिए उन्होंने कर्जे की वापसी का मुतालबा नहीं किया, लेकिन 1-2 आदमियों ने तो बेसब्री का मुजाहरा किया और हर वक्त और रोजाना उसके पास आने लगे और अपनी रकम का सख्ती से तकाजा करते, और दुकानदार भी शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता। लेकिन यह मामला ज्यादा देर तक न चल सका, और जब मामला यहाँ तक पहुंचा और मशहूर कौल के मुताबिक कि छुरी जिस्म के ढांचे पर जा पहुंची, तो दुकानदार सोचने लगा कि अब मैं ज्यादा देर तक इन उजलत पसंद कर्जखाओं का सामना नहीं कर सकता और ना ही उनसे मजीद मोहलत मांग सकता हूं कि वो सब्र करें। इसलिए उसने इरादा किया कि चंद दिन के लिए अपनी दुकान बंद रखेगा ताकि कर्जखाओं के रोज रोज के मुतालबे से कुछ देर बचा रहे, और फिर किसी वक्त रात को चिराग की मध्यम रोशनी में दुकान का सामान भी उठाकर घर ले जाएगा। दुकानदार शहर के बाहर एक चक्की बान को पहचानता था जो उसके बाप का दोस्त था, इसलिए उसकी तलाश में चल पड़ा और उसे अपनी जिंदगी का पूरा किस्सा इसी तरह सुनाया। उसने चक्की बान से दरख्वास्त की कि चाचा कुछ देर तक मुझे यहाँ मजदूरी करने दो। जब चक्की बान ने दुकानदार की बातें सुनी तो कहने लगा, ऐ बंदा खुदा, मुझे कोई उज़र नहीं है, जब तक तुम्हारा दिल चाहे और जब तक पसंद करो यहाँ चक्की पर काम करो, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम इतना सख्त काम कर भी सकोगे या नहीं।
क्या तुम आटे की गठलियां उठाकर इधर उधर रख सकोगे? दुकानदार के लिए अपनी इज्जत और हलाल का लुकमा हासिल करने के लिए सिवाय इसके कोई चारा न था कि वो ऐसी मेहनत और मजदूरी करे। इसलिए कहने लगा, मैं हर मुश्किल काम के लिए तैयार हूँ। अगरचे ये चंद दिन बहुत सख्त होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाऊंगा। दुकानदार कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, उम्मीद है मुझे जल्द कुशादगी हासिल हो जाएगी और जल्दी अपने असली काम की तरफ लौट जाऊंगा। अगर किस्मत ने मदद की तो आपकी मोहब्बत की जल्द तलाफी कर दूंगा। उसी दिन से दुकानदार उस पन चक्की में काम करने लगा। अगर इससे पहले वो ऐसा सख्त काम करने का आदी न था, लेकिन उसके बावजूद भी खुश था कि अल्लाह के बंदों के सामने बेइज्जत नहीं हुआ। दुकानदार अब चक्की बान का मजदूर बन गया था। वो चंद दिन काम करता रहा और कर्ज खाओं के मुतालबा और उनका सामना करने से बचा रहा। अब वो रात को थका हारा बीवी बच्चों के पास लौटता, लेकिन इत्तेफाक से एक दिन जब निहायत मेहनत से काम कर रहा था और पसीना बहा रहा था, तो उसे चक्की के सामने शोरगुल और शिकवा शिकायत की आवाजें सुनाई दी। वो तेजी से चक्की से बाहर निकला तो देखा कि ए दिले गाफिल, वो चीज जिससे तू डर रहा था वही तेरे सर पर आन पहुंची। उसके कर्ज खाओं में से 2-3 आदमी बेसब्री का मुजाहरा कर रहे थे और अपना कर्ज मांगने के लिए वहां भी आ पहुंचे थे और चाहते थे कि उसे शहर के काजी की अदालत में ले जाएं। दुकानदार ने कर्ज खाओं को देखते हुए कहा, अल्लाह ताला मेरी हालत को जानते हैं, मैं तुम्हारे कर्ज की अदायगी के लिए ऐसा सख्त काम कर रहा हूँ। एक कर्ज ख्वाह जो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा चालाक था कहने लगा, अब हमसे बहस भी करना चाहते हो? तुमने तो कर्ज लेकर दुकान भी बंद कर दी और पहाड़ों और जंगलों में आकर छुप गए हो। क्या तुम समझते हो कि हमारे पंजे से भाग जाओगे? अब हम 2-3 दिन की तुझे और मोहलत देते हैं ताकि हमारा कर्ज अदा कर दो, वरना जो कुछ देखोगे अपनी आंखों से देख लोगे। ये बातें सुनने के बाद दुकानदार की हालत गोया ऐसी थी कि दुनिया उसके सामने तंगो तारीख हो गई, लेकिन फिर भी उसने हौसला कायम रखा और बदस्तूर चक्की पर काम करता रहा। और जब रात को घर लौटता तो गम से इंतहाई अफसरदा और परेशान हो जाता। उसे मालूम था कि मेरे कर्जख्वाह 1-2 दिन तक दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे और मुझे लोगों के सामने जलील रुस्वा करेंगे और गली कूचों में खींचते हुए काजी के पास ले जाएंगे। बीवी ने जब खामद की हालत देखी तो कहने लगी, क्या हम इससे भी ज्यादा मजबूर और तंग दस्त हो जाएंगे? इसलिए बेहतर है कि आज रात उसी अपने दोस्त की अमानत थैली खोलो और अपनी जरूरत के मुताबिक रकम निकाल लो। इस खयानत से हम पर आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। दुकानदार तो बेचारा पहले ही परेशान था, इसलिए धड़कते दिल से कहने लगा, नहीं नहीं, मैं उस अमानत में खयानत नहीं करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी मुश्किल आसान बनाए। मैंने उसकी रजामंदी के लिए ये अमानत कबूल की है और उसी की अमानत में दस्त अंदाजी नहीं करूंगा। वो रात दुकानदार ने कैसे गुजारी? वो उसी तरह याद खुदा में मसरूफ रहा और जब सुबह हुई तो उसके लिए घर से निकलने की हिम्मत ना थी। उसे बार बार ख्याल आता कि कर्ज ख्वाह उसके सामने आ गए हैं और उसका रास्ता रोक रखा है और निहायत सख्ती से अपने कर्ज का मुतालबा कर रहे हैं। वो इन्हीं ख्यालात में गर्क था कि अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, जिससे वो चौंक गया और जो ही दरवाजा खोलने के लिए उठा तो उस पर खौफ तारी हो गया कि शायद कोई कर्ज ख्वाह दरवाजे पर आ गया है। दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस अजनबी ने सलाम किया और कहने लगा, मैं तुम्हारे एक दोस्त का पैगाम लाया हूं जो इस वक्त सफर में है। उसने मुझे आपके नाम पैगाम दिया है कि आपके पास उसकी जो अमानत है उसे अब उस अमानत की जरूरत नहीं, इसलिए तुम्हें जितनी रकम की जरूरत हो उससे निकाल लो। अगर उससे कुछ बच गया तो अल्लाह ताला की राह में सदका कर दो। दुकानदार को उस अजनबी की बातों का यकीन नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। कहने लगा, खूब, मैं तुम्हारी बातों का यकीन कैसे करूं? मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम मेरे दोस्त का पैगाम लाए हो? अजनबी ने उसे एक खत देते हुए कहा, यह खत तहरीरी है और थैली की निशानी भी इसमें दर्ज है। दुकानदार ने जो ही थैली की निशानी और खत देखे तो खुशी से रोने लगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि उसने सब्र किया और अमानत में खयानत नहीं की। उस दिन के बाद दुकानदार की जिंदगी के हालात यकसर बदल गए। उसने तमाम कर्ज ख्वाहों की अदायगी कर दी और उसका कारोबार रोज बरोज तरक्की करने लगा और बाजार के दूसरे दुकानदार भी उससे इज्जत और एहतराम से पेश आने लगे और कई साल उसी शहर में निहायत वकार से जिंदगी बसर की।